Dr. Rubello, Dr. Vishwanathan, and my dear friends of Hindu Association who are present here, the Meswa, Janaghar Yojana, and all the society office bearers. I am very happy today. Let us give a thunderous applause to Justice Kochhar for a simple reason, for his commitment to the cause and straightforwardness. कहते हैं कितने भी खूबसूरत हो दूसरों के घर, हम चैन की सांस लेते हैं अपने ही घर। घर आज बंबई में बड़ी मुश्किल से मिलता है और आपको ये जानकर बड़ा शौक लगेगा। मैं एक सेमिनार में था रीडेवलपमेंट में, वहां पे लेटेस्ट जो स्टैटिस्टिकल डेटा हाफिज कॉन्ट्रैक्टर साहब ने दिया, वी वर ऑल शॉक्ड सर। The data is that there are 1 lakh professionals are coming in Bombay every day. Not workers, the MBAs who are working for computer organizations, call centers, and the city has already, as the minister said today, कि आज हमारे यहाँ 1.5 करोड़ लोग हैं, 50 लाख की तो लिमिट है। तो इस आइलैंड पे हम कहाँ जाएंगे? पहले वर्कर आते थे, आज वर्कर नहीं आ रहे, एमबीएस आ रहे हैं जिनको 2 करोड़ लोन मिल जाता है, बाइंग कैपेसिटी है, पर घर नहीं है बम्बई में। They'll have to go up। और ये भी एक शॉकिंग न्यूज है जो ये डेटा पे दी है कि आज मसाला डोसा 30 साल पहले 25 पैसा अगर है तो आज वो 25 रुपया हो गया, 100%, शायद 50 भी हो गया। बट फ्लैट की प्राइसेस जो है वो 300 टाइम्स मोर हो गई। तो जरूर ये थी कि कहां से हम ये अफोर्डेबल हाउसिंग लाएंगे। उसमें 2 चीज है, जैसे अभी कोचर साहब ने बहुत सही कहा, एक सेमिनार में चेंबूर में बड़ा इशू हमने लिया था और सारी बिल्डर लॉबी हमारे खिलाफ हो गई थी। हम बिल्डर का योगदान इस सिटी में मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। 100 माले की बिल्डिंग बनाना कोई आसान नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सहकार में असहकार सबसे ज्यादा है। जब मेरे पिताजी ने हमारी बिल्डिंग बनाई, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर थे, उनको एक प्लॉट अलॉट हुआ था 1979 में जूहू की दलदल में, और उन्होंने आईएएस ऑफिसर्स को साथ लेके, विश्वनाथ जी को भी इंटरेस्टिंग बात मालूम होगा, अल्टीमेटली दैट बिल्डिंग गॉट ओवर इन 1991। I had to take little steps to coordinate things and all were IAS officers. I will not name them, but the point was, it was the equal-minded people having the trust on each other. They took the plot of the government. तो प्लॉट भरला गेला, त्याच्यात खूप प्रॉब्लेम आले, आरसीसी कन्सल्टन्सीचे प्रॉब्लेम आले, बबलू सामंतांनी काम केलं, शेवटी आज उत्कृष्ट बिल्डिंग तिथे उभे आहे जिथे मी राहतो। Idea is that the like-minded people came together. They trusted my father as a promoter, waited for so many years to have the house, in spite of the problems that they had to stay in rent. That kind of belief was there, and therefore that self-redevelopment was possible. Today, if you take the costing of the self-redevelopment, which is a requirement of Mumbai city, the costing of the self-redevelopment, Vishwanath ji sahab can correct us, today what is the construction cost maximum? 5,000 rupees per square feet. I am talking of highest cost, quality work. Let us calculate ourselves. 5,000 we take it on the higher side. Vishwanathan ji is saying right. About 2,000 rupees is an expert. I am not. I am saying let us add to this 2,000 rupees 3,000 rupees license cost, because license cost is much more in our country. So if you put the license, and I call it a license cost, there are better names given. So therefore if you add it, license cost another 2,000, 7,000 rupees, general other requirements of approvals, plans, etc. 3 to 5,000 rupees. So it will come to around 10,000 rupees max. What is the rate going on in Bandra? What is the rate going on in Mada colonies? If you see, you have average of 20,000 to 30,000 per square feet. Why not a society themselves come for today redevelopment, of self-redevelopment, appoint people like, and that is the exact need I discussed with Ramesh Prabhuji. He said, sir, we will start this Gruha Yojana, Gruha Kranti
Yojana as Janagar Yojana, but I said Prabhuji, problem as Kocha Sahab said rightly, पैसा कहाँ से आएगा? Finance. And therefore I said, and आज मिनिस्टर जी कहे कि जनधन योजना के साथ जनघर योजना चाहिए. And Prabhuji has already tied up with various banks, and you will be surprised to hear that Mumbai Development Corporation Bank is ready to give you loans. There are various finance companies right from HDFC going to give a loan, but my suggestion to Prabhuji and my wish is that he becomes another bank like HDFC Bank, where we can give assistance to middle class people as far as Janaghar Yojana is concerned. We can give this Janadhan to it. And let us give a thunderous applause to Ramesh Prabhu for following up this kind of idea. He is not here, but in his absence, I really credit him to that. And my further really appreciation, sir. आपण एक फार चांगली गोष्ट आज सांगितली. मराठीत बोलतोय, आप तो लगे तो हिंदी में भी बोलता हूँ, गुजराती में भी काय सका है, क्योंकि मैं दिल की भाषा बोलता हूँ. कहते हैं कि मेरे भाषा को न देखो, मेरी भावना को देखो, मेरे लिफाफे को न देखो, उसके मजमून को देखो. The point here is, sir has correctly said that let us not welcome the investors and resellers in this market, because this complete entire proposal and scheme is only for those who really require the houses for residential purpose and not for trading purpose. Another question comes is, how would you weed out these people from this Janagar and Grahakanti Yojana that they are a genuine buyer? Ask in our form scrutinization how many houses you have got, what are the other loans you have taken, where you are staying and whose name the flat is. I can understand with a big family making provisions for children other than 1 or 2 flats, but the investors must not be welcomed, because most of the resellers and investors are in the market today. Especially when we talk of redevelopment, and I was coming back to the self-redevelopment, we were working out the cost. Look at a society who is going for, and this is my proposal to you, look at the society which is going for redevelopment construction cost. We have taken every cost at 10,000 rupees. You are getting a booking, suppose the market rate is 35,000 rupees. Why can't you get a booking from your own relatives and your friends or the society members themselves for their children at the rate of 15 to 20,000? Anybody would come. Then you will say, where is the technical know-how, sir? ये आपने सेल्फ डेवलपमेंट कहा तो सही, टेक्निकल नो-हाउ कहा. इसमें 2 समस्या है, जैसे कोचे साहब ने बहुत सही कहा, सकार में असकार बहुत है. बाजू वाले को 5% एक्स्ट्रा एरिया अगर मिला, वो चेयरमैन है सोसाइटी का, तो बहुत तकलीफ होती है. उसके ऊपर संशय लिया जाता है कि उसने बहुत पैसा खाया काम में, बट वो बिल्डर भले फिर उसका पूरे फ्लैट खा जाए, आपके 15% से जगह रिड्यूस करे रीडेवलपमेंट, वो चल जाए. तो ये एटीट्यूड हमें चेंज करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए. और आज टेक्निकल नो-हाउ लार्सन एंड टुब्रो है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग है, कॉन्ट्रैक्टर्स करके आते हैं आपके साथ. जयपुर में सेल्फ रिडेवलपमेंट हुआ है, बांद्रा में हो रहा है, बांद्रा में तो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है, चंद्रशेखर प्रभु जी ने भी आर्किटेक्ट काफी सेल्फ रिडेवलपमेंट करा है. तो सेल्फ रिडेवलपमेंट आज प्रभु जी के साथ, ऐसे संस्था के साथ हम कर सकते हैं सिटी ऑफ मुंबई में, जिसमें सोसाइटी को फायदा, 2 फायदे होते हैं. एक फायदा तो ये होगा कि आपको ये आपका घर वापस मिलने की गारंटी रहेगी. नहीं तो आज रीडेवलपमेंट के मार्केट में मैं 54 प्रोजेक्ट्स का रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ और करीबन 15 साल से हूँ. प्रभु जी आइए, जोरदार तालियां प्रभु जी के लिए. हाँ, नहीं थे सर, हमारा कहना है कि आप जनघर योजना के साथ जनधन योजना शुरू कर दीजिए. रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस आपको देना चाहिए, रीडेवलपमेंट को फाइनेंस आपको देना चाहिए, और जितनी सोसाइटीज है उतने आपके पास आएंगी. उनको बिल्डर की जरूरत नहीं, आपके डॉक्टर विश्वनाथन है, एक्सपर्ट्स है, हम लोग वहाँ कर सकते हैं. मैं क्या आपका सजेशन स्वागत करता हूँ. हमने स्वागत हाउसिंग फाइनेंस में जो सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं उनको 99% कर्जा देने का भी स्कीम बनाया है. 99%. Only 1% they have to contribute. The title should be certified by our architect advocate. That's it. If the title is certified and all the members of the society are our members of our, we'll give them a project implementing agency, we'll give them a project management consultant, we'll give them the legal advisor,
everything will give, and we charge 9.6%, and we are going to give them the construction finance also. Let us join giving a thunderous round of applause. I think this is one of the best things. The advantage of the self-led development. What are the problems today in the market? My analysis today, being last 15 years legal consultant to the redevelopment, is there are more brokers than the actual developers. ब्रोकर कम्स आपको सपने बेचता है, जिस जगह पे आपकी 320 स्क्वायर फीट का फ्लैट है वो आपको कहता है 3 बेडरूम का फ्लैट आपको दे दूंगा। कैसे दे दूंगा? आर्किटेक्ट आपको एक अच्छा सा प्रोफाइल बना के बताता है, रूम की साइज नहीं बताता कितनी है, वो 9x9 भी हो सकती है, वो बाद में पता चलता है जब आप लेते हैं, और कहता है इसमें हमने 40% लोडिंग कर दिया बिल्डअप एरिया का, आपकी बालकनी, आपके फ्लावर बेड, प्रोपोर्शनेट एरियाज ऑफ द लिफ्ट, प्रोपोर्शनेट एरियाज ऑफ द बालकनीज, प्रोपोर्शनेट एरियाज ऑफ द पैसेज, एवरीथिंग इज एडेड. So a flat which is given to you of 400 area, there is a 40% loading. He talks of it as a 600 or 650 area with super built up area. And the resellers sell the dream, get the project, they promise you the outgoings, they promise you the corpus, the best corpus, they promise you extra amenities, and ultimately they sell that project to some other builder. आप कहेंगे सर कहाँ हुआ ऐसा? वैदेही आकाश का ज्वलंत उदाहरण है अंधेरे में, जिसकी केसेस मेरे पास है. वैदेही आकाश के लोगों ने फोंडेकर नामक बिल्डर, में नाम के साथ कहता हूँ कि बिकॉज मैटर चल रहे हैं मेरे पास है, फोंडेकर नामक बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था. इस फोंडेकर नामक बिल्डर को उस टाइम पे पीएमसी नहीं थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नहीं थी, कोई लीगल एडवाइजर सोसाइटी ने लिया नहीं था. एग्रीमेंट में लिख दिया दैट द बिल्डर, सर, द बिल्डर हैज अथॉरिटी टू सेल द एंटायर प्रोजेक्ट एंड ही सोल्ड द एंटायर प्रोजेक्ट टू द रुस्तम जी. आप चेक करो, फॉर द sale portion of the commercials, and society had no option but to terminate the Fondeker and go back to again Rustum ji. The cases are that those doctors, those lawyers, those chartered accountants and good people who wanted good residential flats in Andheri bought the 2-bedroom flat from Fondeker with full power of attorney given by the society by a general resolution, paid the money to Fondeker in advance. More than 60% today are not going to get their flats. The fact is that the people who were residing in that society, Vaidehi Akash, that is the Deennagar Housing Society, the people were on the roads and they were not getting their outgoing rents for nearly 6 years. The project was supposed to be finished in 18 months. Till today the project is not completed. मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है कि बिल्डर को देखे आपका हालत, अगर आप बिल्डर का सही चॉइस नहीं करोगे, सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, सही एग्रीमेंट नहीं करोगे, तकलीफ में आ सकते हैं. इसके लिए आपके लिए सोल्यूशन है सेल्फ रीडेवलपमेंट. अंत में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. एक मुझे कहानी याद आती, बड़ी पुरानी कहानी, शायद आपको पता है. एक किसान था, उसके खेत में कटाई करनी थी, धान आ गया था. वहाँ एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था, छोटे बच्चे थे जो उड़ने को तैयार थे. किसान ने कहा कल मैं मेरे दोस्तों को बुलाऊंगा और कटाई करूंगा. बच्चों ने कहा कि किसान बोल रहा था कटाई करेंगे, हमें यहाँ से घोंसले से निकालना चाहिए, उड़ जाना चाहिए. उनकी माँ चिड़िया ने कहा चिंता मत करो, 15 दिन कुछ नहीं होगा. उसके बाद वो किसान वापस कहा कि मैं मेरे रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को बुला के कटाई करूंगा. बच्चों ने माँ को कहा अभी तो उड़ना चाहिए, जाना चाहिए यहाँ से. कहा कि मत जाओ, 15 दिन और कुछ नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा. फिर किसान ने कहा चलो कल से हम काटते हैं. तब चिड़िया कही अभी हमें उड़ना चाहिए. तो जब तक हम सेल्फ रीडेवलपमेंट नहीं करेंगे, हमारी हालत यही होगी कि हम तीसरों पार्टी को हमारा पूरा प्रॉफिट, आज सोसाइटी को आप इमेजिन करो कितना कॉर्पस आ सकता है रीडेवलपमेंट में, और सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि लाइक माइंडेड पीपल आपके साथ रहेंगे, आपके रिलेटिव रहेंगे, आपका कल्चर रहेगा. आप जैन सोसाइटी तो जैन रहेंगे. आज हेट्रोजीनियस लोग साथ में आते, उसमें कोई गलती नहीं है,
बट हेट्रोजीनियस लोग साथ आने से कई प्रॉब्लम सोसाइटीज में और भी बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक क्लासेस अलग अलग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। आज जहां मैं रहता हूं सारे IAS ऑफिसर्स के बच्चे एक ही क्लास के हैं, कोई सोसाइटी है जो कंपनीज की सोसाइटी होती है एक ही क्लास के लोग होते हैं, तो the economic class like-minded people come together and you are sure of getting your house. So therefore I am an advocate today, though by profession, but advocate of self-redevelopment by Jana Grah Samstha, खास करके जनघर, the Janghar Yojana is my wife's name, Janaghar Yojana and Grah Kranti, but that Grah Kranti how it is to be built, प्रभु साहब आपको जनधन भी देना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी नहीं कर सकती। तो आई थिंक दैट बी डन। आई विल ओनली एंड अप बाय सेइंग एज आई यूजुअली से, क्योंकि आज मोदी साहब का फंक्शन है हमारे बाहर का, 150 इयर्स हो गए मोदी साहब मुंबई में आ रहे हैं, इसके लिए मैं कंक्लूड करूंगा। वो कहते हैं कि आज रीडेवलपमेंट जो है उसमें घोर अंधेरा है, घना अंधेरा है, पर कौन कहता है कि इस घोर अंधेरे में और घने अंधेरे में दिए जलाना मना है। आइए मेरे साथ हम लोग सब मिलके, सारी सोसाइटी मुंबई के साथ रहेंगी, कोचर साहब का गाइडेंस रहेगा, विश्वनाथन साहब, डॉक्टर रुबेलो, प्रभु साहब का गाइडेंस रहेगा, और हम यही कहेंगे कि बात ही बात में विश्वास बदल जाता है। ये डेवलपमेंट में होता है, बिल्डर के पार्टनर झगड़ा करते हैं और घर नहीं मिलता है, बात ही बात में विश्वास बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। पर तू मुसीबत से ना घबरा, इस घर क्रांति के मेंबर जो यहाँ बैठे हैं, मुंबई के रहवासी, अगर तू चाहे तो धरती के आकाश बदल सकता है।